Namaste ji, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the UPSC Civil Service Examination. Every student who wish to serve the nation must appear for the Civil Service, UPSC Civil Service Examination. Prior to UPSC, Civil Service Examination was known as Indian Civil Service. It was established in 1926. This is All India Services. Like every state, there exists Public Service Commission for the state level. For central, it is Union Public Service Commission. Through this exam, one can appear for All India services like IAS, that means Indian Administrative Service, IPS, Indian Police Service, and IFOS, Indian Forest Service. As you know, those who appointed as IAS, they work as district magistrate and district collector at the district level, later on secretary in ministries, and chief secretary in the state. Chief secretary is the highest post in a state. Likewise, cabinet secretary in the central government. In the same way, those comes from IPS or Indian Police Service. They serve as superintendent of police at district, director general of police, as well as later on intelligence bureau. And those from Indian Forest Service, they are involved with the task of forest conservation, wildlife, environmental policies. Beside that, there are A and B group in central civil services. There are 24 central civil services like Indian Foreign Service, Indian Audit and Account Service, Indian Civil Account Service, Indian Corporate Law Service, Indian Revenue Service, Indian Trade Service, Indian Defence Account Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Postal Service, Indian Information Service, Indian Defence States Service. ये जो सर्विस का नाम मैं बता रहा हूँ, ये हर एक प्रेस्टिजियस जॉब है. इन्हीं लोग, हमारा जो देश है, ये चलाते हैं. जो पॉलिसी मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है या इम्प्लीमेंटेशन है, इसी के द्वारा ही होता है. ऑल इंडिया सर्विस में अगर आपको आना है तो एट फर्स्ट इसका जो क्राइटेरिया होता है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस के लिए, पहली बात है कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, इस देश का नागरिक होना पड़ेगा आपको. इसमें कुछ एज लिमिटेशंस भी है. हर साल अगस्त महीना में आपका ये एग्जाम होता है. अगस्त का 1 तारीख को अगर आप जनरल है, ओबीसी है या एससी और एसटी हो, the age should be 21, and the general people, those people who belongs to general category, they will get the opportunity to appear for this exam from 21 to 32 years of age. 31 से 32 साल तक वो अपियर कर पाएंगे. जो लोग ओबीसी कैटेगरी से है, वो लोग 21 से 35 साल तक अपियर कर पाएंगे. और जो एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, वो लोग 21 से 37 साल तक अपियर कर पाएंगे. इस एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन होगा. वो किसी भी स्ट्रीम का होना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि
इसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से होगा, ऐसा नहीं। आप अगर प्लेन ग्रेजुएट भी हो फिर भी आप अपीयर कर पाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने बार आप बैठ सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 टाइम यू आर अलाउड टू अपीयर फॉर 6 टाइम्स। ओबीसी अगर हो तो 9 टाइम्स एंड एससी एसटी अगर होंगे तो अप टू 37 एज तक, जितने बार आप चाहें। अब हम आते हैं, ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, इसका 3 पार्ट में इसका सिलेक्शन होता है। 3 पार्ट मतलब the first stage is called preliminary examination, the second one is main exam and third one is interview or personality test। ये जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है प्राथमिक का, उसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 इसको सी सेट बोलते हैं। दोनों ही 200 मार्क्स का है। अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो जनरल स्टडीज का जो मार्क्स होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये जो सी सेट का 200 मार्क्स है, इसमें जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। तो लगभग हर एक साल 10 लाख से 12 लाख अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें करीबन 5 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए। उसमें से हर साल 10 या 12,000 10 to 12,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स जो है वो लोग पास करके आते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम दे हैव टू अपीयर, उनको मेन एग्जाम के लिए बैठना पड़ता है। एज आई इन्फॉर्म यू दैट एवरी ईयर 10 to 12,000 candidates out of 5 lakh or more students are qualifying for the main exam। ये मेन जो एग्जाम होता है ये हर साल सितंबर या अक्टूबर का बीच में ही होता है। अब देखते हैं यहाँ जितने पेपर है, इसमें पेपर ए एंड बी, जैसे ए में जैसा है कि इंडियन लैंग्वेज, जो बंगाली हुआ, आसामीज हुआ, उड़िया हुआ, जो लोकल लैंग्वेज होता है स्टेट का। या पेपर पी बी, ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों ही क्वालिफाइंग। इसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे ये किसी आपका जो फाइनल मेरिट का जो मार्क्स होगा उसमें काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए पेपर 1 ऐसे पेपर है, ऐसे राइटिंग, ये 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, इसमें आपको मिलेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, इसमें 250 मार्क्स है। इसके बाद आप आइए पेपर 3, इसमें आपको जनरल स्टडीज 2, इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी 250 है, इसका मतलब 250 है। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, इसमें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके बाद देखिए पेपर 5 जनरल स्टडीज 4, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें भी 250 मार्क्स है। और लास्ट में जो है एक किसी भी आपका ऑप्शनल, आपका चॉइस का ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा। इसका 2 पेपर होता है, पेपर 6th एंड 7th, वो भी 250, 500। इसका मतलब आपका जो मेन का जो एग्जाम होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें इससे पहले जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमने देखा कि वो एमसीक्यू होता है प्रिलिमिनरी, एवं उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। हर एक, अगर आप गलती करेंगे तो 1/3 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएंगे। ऐसा यहाँ नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। ओवरऑल 1750 आपका टोटल मार्क्स है। इसमें आपको कितना मिलता है, अगर आप काटा का ऊपर अगर आप होंगे तो इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें आप अपीयर करेंगे। ये जो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट ये मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। ये दिल्ली, न्यू दिल्ली का धौलपुर हाउस, यूपीएससी का जो ऑफिस है उसमें होता है। इस इंटरव्यू में आप
275 होता है। इसका मतलब 1750 और 275, 2025 टोटल मार्क्स दोनों मिला के, मेन एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट दोनों मिला के। जब इंटरव्यू होंगे तो आध घंटा से 45 मिनट तक लास्ट कर सकता है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। पैनल में 5 आदमी होगा इंक्लूडिंग 1 चेयरपर्सन। ये जो इंटरव्यू होता है इसमें देखा जाता है कि आपका ऑनेस्टी कैसा है, आपका जो चिंतन है वो कैसा है, क्लैरिटी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कैसा है, एम्पैथी कैसा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी एबिलिटी है वो कैसा है, ये जांच करते हैं। इसके बाद वो दोनों मिला के रैंकिंग होगा, टोटल स्कोर कैलकुलेशन होगा। दैट मीन्स वो जो मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों मिला के जो 2025 मार्क्स है, आउट ऑफ 2025 मार्क्स आपको कितना मिला है। अगर सब कुछ ठीक है और जितना ज्यादा स्कोर होगा आपका रैंक भी उतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा रैंक होगा ऑल इंडिया रैंक में आपका सर्विस प्रेफरेंस भी बहुत अच्छा होगा। जब सर्विस प्रेफरेंस हो जाए तो फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है। तो रिसेंट ट्रेंड हम 2023 का काट ऑफ का जो एनालिसिस किए हैं, प्रीली से लेके फाइनल तक जो स्कोर हुआ है यहाँ देख पा रहे हैं आप कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 47%, ओबीसी 45.38%, एससी 44.5%, एसटी 43 लगभग 44%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद इन द जनरल कैटेगरी इसमें लगभग 46%। तो इसका जो एग्जाम का हर एक साल इसका जो कैलेंडर एक्टिविटी वो अपलोड होता है रहता है, आप देख भी पाएंगे। तो ऐसे इसका जो नोटिफिकेशन वो लगभग फरवरी तक हो जाता है। प्रीलिम एग्जाम जो है मई जून होता है। जुलाई में प्रीली का रिजल्ट आउट होता है। सितंबर अक्टूबर में आपका मेन एग्जाम, दिसंबर जनवरी में मेन का रिजल्ट, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और फाइनल रिजल्ट मई तक हो जाता है फाइनल रिजल्ट। तो सुनने में या बोलने में जितना आसान है उतना आसान भी नहीं है, पर ये भी सच है कि उतना टफ भी नहीं। अगर आपका डिटर्मिनेशन ठीक हो, अगर आप ठीक से आपका प्लानिंग हो, आपका जो कंसिस्टेंट एफर्ट हो, अगर आपका सपना वही आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी क्रैक करना हो तो कोई आपको रोक नहीं पाए। आपका नसीब, आपका जिंदगी अगर वही है तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। बी पॉजिटिव। मैंने कुछ आपको बोले यूपीएससी के बारे में। गो एंड प्लंज इनटू द वेव ऑफ स्ट्रगल एंड कैच द फिश एंड टेक इट आउट। थैंक यू सो मच। आप हर कोई सफल हो यही उम्मीद, यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।